السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ملازم پولیس کا قتل کرنے کے واقعے میں گرفتار ملزم ریاض کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے زخمی ریاض کو حراست میں لے کر گورنمنٹ ہاسپٹل نظام آباد منتقل کیا اور علاج کروایا۔ حکام کے مطابق صبح ریاض کے 4 مختلف اقسام کے ایکس رے کیے گئے، تاہم علاج کے دوران ریاض نے وہیں موجود کانسٹیبل کی بندوق چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس پر پولیس نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ریاض کی فائرنگ میں AR کانسٹیبل شدید زخمی ہوا۔ البتہ اس انکاؤنٹر سے متعلق مکمل تفصیلات کا انتظار ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ جبلی ہلز ضمنی انتخابات قریب ہیں، لیکن اس دوران جبلی ہلز کے عوام کا سخت رد عمل دیکھا جا رہا اور کئی عوام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ اکبر الدین اویسی نے ریونت ریڈی کو RSS کا ٹلو قرار دیا تھا، وہی ذہنیت آج حکومت میں جھلک رہی ہے۔ جبلی ہلز کے عوام کا سخت رد عمل دیکھا جا رہا اور کہا گیا کہ جبلی ہلز میں کانگریس پارٹی کے خلاف عوامی ناراضگی شدت اختیار کرتی جا رہی۔ مقامی عوام نے کھل کر کانگریس قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت جھوٹے وعدوں اور دھوکہ دہی کی سیاست کرتی چلی آ رہی۔ عوام نے شکایت کی کہ کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کو نظر انداز کیا۔ اس وقت ریاستی حکومت میں کوئی مسلم وزیر شامل نہیں، جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی ایک واضح مثال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کی اصل قیادت گاندھی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو کسی مسلمان کو وزارت کا قلمدان دے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جبلی ہلز کے ٹکٹ الاٹمنٹ پر بھی عوام نے ناراضگی ظاہر کی، جہاں اظہر الدین جیسے معروف اور سینئر لیڈر کو نظر انداز کر کے نوین یادو کو ٹکٹ دیا گیا، جو ایک خاص ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مقامی شہری نے کہا کہ جیسے اکبر الدین اویسی نے ریونت ریڈی کو RSS کا ٹلو قرار دیا تھا، وہی ذہنیت آج تلنگانہ میں کانگریس کے رویے میں جھلک رہی۔ تمہارے جنگل میں لے جا کے پٹکے بولے فیروز خان کے کہاں ہیں، وعدے کہاں ہیں؟ کانگریس کے بڑے بڑے حماقتاں کرے، میں وہ کر ڈالوں گا، میں یہ کر ڈالوں گا، کہاں ہیں ان کے؟ اب بول سکتے نا CM کو میں وعدہ کرا اس سے پہلے جنگل میں لے جا کے پٹکے سٹی میں دیتے جی ہم ہمارے کو جتاؤ بولے، یہ بات بول رہے ہو نا؟ فیروز خان نہیں بول رہے، ارے خود لڑو بھائی، عوام نہیں جیتا ہی نہیں صاحب۔ پھر محمود علی صاحب کو جیتا ہے کیا؟ محمود علی صاحب ہار کے بھی ڈپٹی CM بنے نا صاحب، چاہے تو ریونت ریڈی صاحب بنا سکتے نا، شبیر علی صاحب پرانے ہیں۔ میں 99 میں میرے کو آٹو الاٹ ہوا تو شبیر علی صاحب اپنے مائنارٹی کے چیئرمین تھے، انہوں تو نہیں دیا میرے کو، لداخ کی سرٹیفکیٹ لاؤ بولے، ویسے پھر KCR صاحب میرے کو دیے، ذات پات نہیں کی نا، انہوں دے دیے میرے کو، آٹو دے دیے مائنارٹی پہ، جب بول سکتے تھے نا انہوں۔ محمود علی صاحب خالی یہ باتیں کرنے کے، محمود علی شبیر صاحب باتیں کریے۔ دیوالی کے موقع پر سابق وزیر ہریش راؤ کی چار مینار بھاگیہ لکشمی مندر میں خصوصی پوجا۔ دیوالی کے پرمسرت موقع پر سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے تاریخی چار مینار کے قریب واقع بھاگیہ لکشمی مندر پہنچ کر خصوصی درشن کیے اور خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ ہریش راؤ نے اس موقع پر ملک و ریاست کی خوشحالی، امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ مندر کے اطراف دیوالی کے موقع پر خصوصی سجاوٹ کی گئی تھی اور بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی موجودگی دیکھی گئی۔
जुबली हिल्स में अवाम की हुकूमत से शिकायत। अवाम का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने 200 यूनिट्स मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था, पर इसमें भी लूट है। ख्वातीन के लिए मुफ्त बस की है, पर मगर मर्दों के बस टिकट पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कार्मिका नगर में कब्रिस्तान की जमीन का वादा किया था, पर अब उसका जिक्र भी नहीं है। देखिए जुबली हिल्स में अवाम की जानिब से क्या रद्दमल मिल रहा। तो उसके पैसे पूरे बराबर पूरे पैसे ले रहे, तो गरीब आदमी कहाँ से बनेगा ये पैसे? नहीं तो आप वो स्कीम ही नहीं देना था, नहीं देना था। उसके बदले क्या है, फ्री बस की स्कीम। खैर फ्री बस की स्कीम दी है, फ्री बस क्या करे बोले तो लेडीज को फ्री है, जेंट्स को डबल टिकट होगा। फिर उसको ऑप्शन देखने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है। लेडीज को क्या मालूम रहता, घर में बैठ के रहते होगा। उन लोगों को क्या मालूम हम फ्री में जा रहे हैं, हम आधार कार्ड बता रहे जा रहे बोल रहे। यहाँ से जहराबाद जाने का टिकट 90 रुपये था पहले, अब 120 रुपये हो गया, 130 रुपये हो गया जेंट्स को। तो बढ़ाने बढ़ा, वो बात है, बड़ा कुछ भी नहीं कम भी नहीं, एक हिसाब से काम करे तो क्या है, पब्लिक भी सपोर्ट करती। अब हम लोग खबरस्तान के वास्ते दुनिया का लड़ रहे हैं यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे कारमिया नगर में लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट की जमीन है क्या, वो जमीन देते बोल के चौरस्ते पे ठहर के वादा करे थे अजहर साहब भी, उसके बारे में अब तक कोई एक्शन नहीं लिए। कौन वादा करे थे? अजहर साहब अपने अजहरुद्दीन साहब वादा करे थे यहीं ठहर के रैली में। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की। वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि इस दिवाली हर घर में इल्म, खुशी और खुशहाली की रोशनी हो और सब लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि महफूज तरीके से त्यौहार मनाएं। उन्होंने छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रखने की हिदायत भी दी। उन्होंने हिदायत दी कि दिवाली के दौरान तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला चौकस रहे, खासतौर पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और दीगर अस्पतालों के आंखों के शोबे में डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे दस्तयाब रहे। रियासत तेलंगाना में दिवाली का जोश व खरोश। तेलंगाना में दिवाली रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। आवाम ने मंदिरों का रुख किया और रोशनियों के इस त्योहार के मौके पर खुसूसी पूजा की। घरों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया, दुकानात भी सजाई गई और ताजरों ने अपनी दुकानों में पूजा की। हैदराबाद और दीगर शहरों के बाजारों में भी रौनक देखी गई, जहाँ खरीदार मिठाइयों, फूलों और पटाखों की दुकानात पर देखे गए। हुकूमत ने शहरियों से अपील की कि वो माहौल दोस्त तरीके से जश्न मनाएं, कम आलूदगी वाले पटाखे इस्तेमाल करें। डॉक्टर अडांकी दयाकर एमएलसी तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि बीआरएस और केटीआर के लालच की कोई हद नहीं, अपनी क़ियादत बरकरार रखने से खासर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की उम्मीद में जी रहे, लेकिन जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के पीछे हैं, तेलंगाना के अवाम आपकी नाअहली को जानते हैं। देखिए डॉक्टर अडांकी दयाकर एमएलसी तेलंगाना हुकूमत का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। వాళ్ళకి అసహనం ఉన్నప్పటికి కూడా చేరికలతోని ఏదో ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనపడాలని చేస్తున్నది, అది జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక కొరకు చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్పితే మరొకటి కాదు. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ఏదైతే చంద్రసేనుడు కథ ఉందో అదొకసారి వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా సమాజం నుంచి వస్తున్న అంశాలను जुबली हिल्स में कांग्रेस फेल है। जुबली हिल्स में कांग्रेस को अवाम की जानिब से मुस्तरदी स्कीमात में इम्तियाजी सलूक पर नाराजगी। जुबली हिल्स में अवाम ने कांग्रेस पार्टी को फेल करार दिया। मुकामी शहरियों का कहना है कि जमात का काम देखा जाता है, उनके लिए बीआरएस बेहतर जमात है। कांग्रेस हुकूमत के दौरान फलाही स्कीमात से इस्तेफादे के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की लाजमी शर्त रखी गई थी, जिसके बाइस कई मुस्तहक अफराद इन सहूलतों से महरूम रह गए। अवाम ने इसके बरअक्स साबिक वज़ीर आला केसीआर की हुकूमत को याद करते हुए कहा कि उनके दौर में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम अक़लियतों को यकसा तौर पर सरकारी स्कीमात फराहम की गई। इलाक़े मकीनों का कहना है कि अगर केसीआर के दौर में कब्रिस्तान की अराजी का मसला उठाया जाता तो मुमकिन है कि जुबली हिल्स के मुसलमानों को कब्रिस्तान की सहूलत मुयस्सर आ जाती, क्योंकि उनकी हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को संजीदगी से लेती थी। केसीआर साहब किसी मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन वो कुछ भी नहीं सोचते हो लोग। आवाम को तेलंगाना का पैदा हुआ, तेलंगाना को दे दो, इंसानों को दे दो बोले तो मैं अब से नहीं 40 साल से फिरता हूँ, तो जात पात ये शुरू से रेवंत रेड्डी साहब से पहले से कांग्रेस है ना, वो लोग
पहले से ही शुरू करते कि जात पात गिनते कि लद्दाफ सर्टिफिकेट लाओ। हमारे पास कैश नहीं बनता था, कैश सर्टिफिकेट नहीं बनती थी। अपने क्या बोलते अपने को कोई गवर्नमेंट से काम नहीं होते थे साहब। तो केसीआर साहब जब से आए हैं 10 साल में बहुत अच्छे काम हुए, मुसलमानों को भी हुआ, सब हुआ। अब यहाँ खबरस्तान का सवाल है अपने बोराबंडे में। अब ये खबरस्तान का सवाल पहले नहीं उठाए लोग, अब जगह बस फुल होने से अब उठा रहे। पहले अगर उठाते तो शायद केसीआर साहब सपोर्ट करते थे होंगे। केसीआर साहब खुद में नहीं उठाए ये बात, अब उठा रहे। अब एक ही चीज पॉलिटिक्स कर रहे हो लोग, खबरस्तान के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बोराबंडे में खबरस्तान के लिए पॉलिटिक्स हो रही है पर। निजामाबाद में रोनुमा इनकाउंटर में बदनाम जमाना रॉडी शीटर रियाज हलाक हो गया। इस वाक़े पर तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। डीजीपी के मुताबिक रियाज को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसने मौके का फायदा उठाकर कमरे के बाहर तैनात एआर कांस्टेबल की बंदूक छीनने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें रियाज मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रियाज को फायरिंग का मौका मिल जाता तो अस्पताल में मौजूद कई जानें खतरे में पड़ जाती। इसलिए पुलिस ने आवाम की जानों को बचाने के लिए फौरी फैसला लेते हुए कार्रवाई की। डीजीपी ने उन खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया जिनमें कहा गया था कि पहले रियाज ने फायरिंग की और एआर कांस्टेबल जख्मी हुआ। उनका कहना था कि रियाज ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे मौके नहीं दिया और उसे गोली मार दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों से इस त्यौहार के मौसम में देसी मसनूआत खरीदने और इस्तेमाल करने की सख्ती से ताकीद करते हुए कहा है कि मुल्क भर के त्यौहारों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेहनत, तख्लीकी सलाहियतों और इख्तिरात का जश्न होना चाहिए। अपने एक पोस्ट में मोदी ने कहा, आइए हिंदुस्तानी मसनूआत खरीदे और फख्र से कहें ये देसी है। आपने जो कुछ खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब दे। वाज़ेह है कि मोदी मुल्क के लोगों से देसी मसनूआत को अपनाने और मुकामी मसनूआत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील कर रहे। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से अपने खिताब में उन्होंने ये भी कहा था कि इससे मुल्क को खुद कफील बनाने में बहुत मदद मिलेगी। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया जिसके तहत अवामी मकामात पर मजहबी या सनफी वजूहात की बिना पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम को मुस्लिम खवातीन के चेहरे के नकाब को निशाना बनाने के तौर पर देखा गया। पुर्तगाल की अदालत में मज़कूरा बिल दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात चेगा ने पेश किया, जिसमें कहा गया कि बुर्का पूरे जिस्म को ढांपता है और नकाब सिर्फ आंखों के गिर्द जगह छोड़ता है, जिसके अवामी मुकामात पर पहनने पर पाबंदी होगी। हालांकि बिल में ये वाज़ेह किया गया कि इबादत गाहों, सिफारती दफातर और हवाई जहाज़ों में नकाब की इजाज़त बरकरार रहेगी। पुर्तगाल में इस बिल के तहत चेहरा ढांपने वाली खवातीन पर 200 यूरो से 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। सदर मार्सेलो रेबेल दी सोसा की मंजूरी के बाद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रोशनियों के त्यौहार दिवाली के पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। दिवाली, जिसको दीपावली के नाम से भी याद किया जाता है, हिंद मत के एक कदीम त्यौहार जिसको मुल्क में हर साल इंतहाई तज़क व एहतशाम के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की, जहालत पर इल्म की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतेह व कामयाबी की अलामत समझा जाता है। मनोज सिन्हा ने इस पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दुआ की कि ये रोशनियों का त्यौहार हर घर और हर जिंदगी में खुशियाँ और खुशहाली बिखेरे। उमर अब्दुल्ला ने इस मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं दिवाली पर लोगों को पुरतपाक मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने दुआ की कि ये मुकद्दस त्यौहार सभी को अमन, खुशहाली और खुशहाली के नवीद लेकर आए।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिवाली के मौके पर मुल्क और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी लिखा। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शहबाज शरीफ ने लिखा, जिस तरह दिवाली की रोशनी घरों और दिलों को रोशन करती है, इसी तरह ये त्यौहार तारीकी को दूर करे, हम आहंगी को फरोग दे और अमन, हमदर्दी और मुश्तरका खुशहाली की तरफ हमारी रहनुमाई करे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दिवाली का जज्बा जो तारीकी पर रोशनी, बुराई पर अच्छाई और मायूसी पर उम्मीद पैदा करता है, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और अदम मसावत जैसे चैलेंजों पर काबू पाने के लिए हमारे इज्तिमाई अज़म को मजबूत करता है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शहरियों से अपील की है कि मजहब या पस मंजर से किसी की परवाह किए बगैर हर शख्स अमन से जिंदगी गुजार सके और तरक्की में ताउन करे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్నీ వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।